ਹੈਲੋ एवरीवन ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਲਈ। My name is Manpreet Singh. I am working at Government Polytechnic College, Hoshiarpur in Electrical Engineering department. Now we have to discuss about programmable logic controller and microcontrollers subject. ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਲੈਕਚਰ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮੇਬਲ ਲੌਜਿਕ ਕੰਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਮਾਈਕਰੋਕੰਟਰੋਲਰਸ ਸਬਜੈਕਟ ਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ PLC ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੇ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਜੋ 5th ਸਮੈਸਟਰ ਵਿੱਚ PLC ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। This is the most important topic for electrical engineering students. PLC is the modern need of this generation. इस वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ PLC ਦੀ introduction, full form, microprocessor ਤੇ microcontroller ਦੇ difference, relays ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ PLC ਦਾ ਓਵਰਵਿਊ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। PLC ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। PLC means programmable logic controllers. ਇਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਟੂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਖਿਰ PLC ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? PLC ਇਨਪੁਟਸ ਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰਦਾ, PLC ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਿਖੇ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਉਟਪੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। PLC ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੇਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਨਪੁਟ ਮੋਡਿਊਲਸ, CPU, ਆਉਟਪੁੱਟ ਮੋਡਿਊਲਸ। ਇਹ PLC ਦੇ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਹੈ। ਕੁਝ PLC ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਐਕਸਟਰਨਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਜੋ ਮੈਕਸਿਮਮ PLC ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ CPU ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਇਨਬਿਲਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। PLC ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਪਸ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ। PLC ਪ੍ਰੋਗਰਾਮੇਬਲ ਲੌਜਿਕ ਕੰਟਰੋਲਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਈਮਨਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ S7300 ਦਾ PLC ਹੈ। जो PLC है वो एक हार्डवेयर डिवाइस है। हार्डवेयर डिवाइस है मतलब जिसनों असी छू सकते हैं, जिमें मोबाइल हार्डवेयर हो गया, कंप्यूटर हार्डवेयर हो गया, जो कि प्रोसैस नू कंट्रोल करता। ठीक, PLC एक हार्डवेयर डिवाइस है जो कि प्रोसैस नू कंट्रोल करता। ये वो डिवाइस है जिसनों असी रीयूज कर सकते हैं, रीयूज या रीप्रोग्राम कर सकते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू जिस तरह कोई अपने को 2 पिस्टन्स हैं, ये जो पहले ही प्रोग्राम करे हुए हैं, मतलब भी जो फर्स्ट पिस्टन है वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो जो सेकंड है वो एंटी क्लॉक रोटेट कर रहा है। एज पर रिक्वायरमेंट मैं इसनू प्रोग्राम करके मॉडिफाई भी कर सकता। जो फर्स्ट पिस्टन है उसनू मैं एंटी क्लॉक रोटेट करवा सकता ते सेकंड है जो उसनू क्लॉकवाइज रोटेट करवा सकता। ठीक, इसका ये मतलब है जो अपना रीप्रोग्राम। ठीक, ये वो डिवाइस है जिसनू असी रीयूज कर सकते हैं किवें प्रोग्राम करके। जिस तरह कोई प्रोग्राम पहला बनया तो उसनू रीप्रोग्राम करना चाहते हैं अपने डिजायर कंडीशन के हिसाब नाल, तो उसनू इसलिए इसनू रीप्रोग्राम कह सकते हैं। रीप्रोग्राम किस तरह होएगा? जो तुहाडी प्रोसैस है, जो तुहाडा मैथड है, जो तुहाडा लॉजिक है,
मैं फिर दोबारा रिपीट करदा, ਇਹ ਉਹ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੀਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੀਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੀਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। PLC ਓਕੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ PLC ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। PLC ਦੀ ਜੋ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮੇਬਲ ਲੌਜਿਕ ਕੰਟਰੋਲਰ। मैं हर एक चीज़ ਤੁਹਾਨੂੰ एक्सप्लेन करने की कोशिश करांगा। स्टार्ट करते हैं कंट्रोल इंट्रोडक्शन तो। कंट्रोल इंजीनियरिंग हैज़ इवॉल्वड ओवर टाइम। इन द पास्ट ह्यूमन वर द मेन मैथड फॉर कंट्रोलिंग अ सिस्टम। जो कंट्रोल इंजीनियरिंग है समय समय के नाल विकसित हुई है, तो पिछले समय के विच ही ह्यूमनस प्रणाली के कोल कंट्रोल करने के मुख्य तरीके सी। More recently, electricity has been used for control, and early electrical control was based on relays. ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਉਹ ਰਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ। These relays allows power to be switched on and off without a mechanical switch. It is common to use relays to make simple logical control decisions. ਇਹ ਰਿਲੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਕੈਨੀਕਲ ਸਵਿਚ ਤੋਂ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਔਨ ਆਫ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਲਾਉ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੰਪਲ ਲੌਜੀਕਲ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣ ਲਈ ਰਿਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਆਮ ਹੈ। The development of low-cost computer has brought the more recent revolution, the programmable logic controller. The advent of the PLC began in the 1970s and has become the most common choice for manufacturing control. जो अपना PLC है वो एक इलैक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ओके, तो एक डिजिटल कंप्यूटर का एक पार्ट है। तो इस यही दसिया गया भी जो लो कॉस्ट कंप्यूटर के डेवलपमेंट मतलब विकास ने हुण रेवोल्यूशन लिया है, मतलब हरी क्रांति इन्वायरमेंट विच चेंज। तो जो PLC की जो शुरुआत हुई है वो 1970 विच शुरू हुई, जो मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਲਪ ਬਣ ਗਈ, मतलब ਆਮ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ। ਅੱਗੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੋ PLC ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਪਈ। PLC ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਫੈਕਟਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲਾਈਟਸ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਕੁਐਂਸ਼ਨਲ ਰਿਲੇ ਸਰਕਟਸ ਦੁਆਰਾ ਮਸ਼ੀਨਸ ਤੇ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿਊਮਨ ਪਾਵਰਸ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਮੋਟਰ ਕੰਪਨੀ ਜੋ ਅਮਰੀਕਨ ਕੰਪਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਡਿਵਾਈਸ ਹੋਵੇ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਬੇਸਡ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੰਪੈਕਟ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ 1968 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਨੇ PLC ਇਨਵੈਂਟ ਕੀਤਾ ਤੇ 1970 ਵਿੱਚ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਤੇ ਲੈਂਡਿਸ ਕੰਪਨੀ which a first PLC है install किया गया। Okay, again next, a PLC is a device that was invented to replace the necessary sequential relay circuits for machine control. The PLC work by looking at its inputs and depending upon their state during on of its outputs। जो PLC एक डिवाइस है जो मशीन के कंट्रोल्स के लोड़ींदेमंद जो अपने सिक्वेंशनल सर्किट्स ਨੂੰ रिप्लेस मतलब तब्दील करने के लिए किया गया सी। PLC जो इनपुट ਨੂੰ देख के ते ਉਹਨਾਂ ਦੇ स्टेट ਦੇ आधार ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ऑन ऑफ आउटपुट ਦੇ दौरान। The user enters a program usually via software, मतलब भी आम तौर पे सॉफ्टवेयर द्वारा that gives the desired result। ओके, सब तो पहले अपन PLC एप्लीकेशन में वॉशिंग मशीन ट्रैफिक सिग्नल इंडस्ट्रीयल मशीन किसी किस्म के भी इलैक्ट्रिकल कंट्रोल ਲਈ PLC ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। जो भी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब नाल आपां PLC विच प्रोग्राम करके उस तरीके नाल मशीन नूं रन करवा सकते हैं। एग्जाम्पल दे विच ये समझाया गया कि PLC दी
यूज़ क्यों किया जाता, तो मैं तुहानूं ईजी वे दे नाल समझाउण दी पूरी कोशिश। मान लो एक स्विच नाल एक सोलेनॉइड कोयल कनैक्ट की है। जो स्विच ऑन हो जाता, असीं चाहुंदे हां कि जो सोलेनॉइड 5 सैकेंड ਲਈ ਕੀ ਆ ऑन होवे, मतलब 5 सैकेंड ਦੀ ऑन होके ऑफ हो जाए। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ऑन है, भी टाइम चेक करना चाਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਟਾਈਮਰ ਦੁਆਰਾ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮਰ ਐਕਸਟਰਨਲ ਟਾਈਮਰ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ, टाइम चेक ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਓਕੇ, अगर जे प्रोसैस विच 10 स्विचिज ਅਤੇ 10 सोलेनॉइड कनैक्ट कर दईए तो आपां ये देखना किन्ने टाइम लिए ऑन है, तो सानू 10 एक्सटर्नल टाइमर की जरूरत होएगी। अगर यही प्रोसैस 100 विच होवेगा तो सानू 100 एक्सटर्नल टाइमर्स की जरूरत होएगी। अगर प्रोसैस विच काउंट की जरूरत होंदी कि स्विच वक्रे तौर पर किन्ने बार ऑन होंदे हैं, तो सानू बहुत सारे एक्सटर्नल काउंटर की जरूरत होगी। जिमें कि इस प्रोसैस नूं करवाउण वास्ते सानू बहुत सारे एक्सटर्नल टाइमर ते बहुत सारे काउंटर की जरूरत है, पर असी PLC विच ईजी तरीके नाल इस प्रोसैस नूं करवा सकते हैं। टाइम ते काउंट दोवें करवा सकते हैं। What is PLC? PLC is a microprocessor based solid state device, works on the principle of logic gates। जो PLC है वो माइक्रोप्रोसेसर बेस्ड है, जिमें 8085 8086 8051 सॉलिड स्टेट डिवाइस इसलिए कहा जाता इसनूं क्योंकि इस दे विच कोई भी मूविंग पार्ट नहीं हुंदा, सिर्फ IC हुंदे हन। IC मीनस इंटीग्रेटेड सर्किट। PLC जो कि लॉजिक गेट्स के प्रिंसिपल पर काम करता है। अगे एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जो इंस्ट्रक्शंस नू स्टोर अते स्पेसिफिक फंक्शन, मतलब खास फंक्शन जिमें कि लॉजिक, सीक्वेंस, टाइमिंग, काउंटिंग एंड अर्थोमैटिक मशीन अते कोई भी प्रोसैस नू लागू करन लई प्रोग्रामेबल मैमरी दी वरतों करता है। नेक्स्ट, ये इंस्ट्रक्शंस अते स्पेसिफिक फंक्शन नू स्टोर करन लई प्रोग्रामेबल मैमरी दी वरतों करता है, जिस विच ऑन ऑफ कंट्रोल्स, टाइमिंग, काउंटिंग, सीक्वेंसिंग, अर्थोमैटिक एंड डाटा हैंडलिंग भी शामिल हैं। और PLC is a computer designed to work in an industrial environment। जो PLC है वो एक कंप्यूटर है जो इंडस्ट्रियल दे विच काम करने लिए तैयार किया गया है। जो PLC है माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड है। मैं इस वीडियो विच ही माइक्रो कंट्रोलर ते माइक्रो प्रोसैसर के डिफरेंस बारे तुहाडे नाल गल शेयर करना चाहुंदा हां। आपनूं माइक्रो कंट्रोलर ते माइक्रो प्रोसैसर के डिफरेंस बारे भी पता होना चाहिए है। फस्ट आपां माइक्रो कंट्रोलर के बारे गल करांगे। जो माइक्रो कंट्रोलर है एक छोटी जही चिप हुंदी है, उसके उपर ही सारा डाटा अवेलेबल हुंदा है, चाहे रैम, चाहे रोम, चाहे किसी भी तरह का अकूमुलेटेड डाटा, चाहे इनपुट आउटपुट पोर्ट्स, सब एक चिप ते ही लगे हुंदे हन। ठीक, इस दे विच यही दस्सिया गया जो माइक्रो कंट्रोलर इज ऑन चिप डिवाइस, रैम, रोम, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स, CPU आर कनेक्टेड इन इंटरनली। तो जो माइक्रो प्रोसैसर है उसके विच जो रैम है, रोम, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स, CPU सब एक्सटर्नली कनेक्टेड होंगे हैं। तो माइक्रो कंट्रोलर किसी खास परपस के वास्ते यूज किए जाते।
ਤੇ ਜੋ ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਹੈ ਜਰਨਲ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਮਾਈਕਰੋ ਕੰਟਰੋਲਰ ਦੀ ਜੋ डिवाइस की जो कॉस्ट है वो लो है, तो माइक्रो प्रोसैसर के डिवाइसिस की हाई है। तो माइक्रो कंट्रोलर लो पावर कंजम्पशन, ठीक भी घट खपत होंगी है, भी जो पावर दी है घट खपत होंगी है। तो जो माइक्रो प्रोसैसर है हाई पावर कंजम्पशन। तो जो माइक्रो कंट्रोलर है वो यूज कित्थे किया जाता, वॉशिंग मशीन्स दे विच, AC रिमोट्स दे विच, माइक्रोवेव ओवनस दे विच, जो पेट्रोल पंप से मशीन्स होंदियां उन्हां दे विच। तो जो माइक्रो प्रोसैसर है लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, मोबाइल्स एक्सेट्रा, ठीक। हुण तुहानूं माइक्रो प्रोसैसर ते माइक्रो कंट्रोलर्स के बारे भी डिफरेंस के बारे पता लग गया है। हुण आपां गल करदे हां इन्वेंशन पर, भी PLC मार्केट विच कदों आया सी। PLC दे फादर दे नाम नाल जो जाने जाते ने वो है डिक मॉर्ली। इन्हां ने 1968 विच फर्स्ट PLC इन्वेंट किया, ते 1970 दे विच इन्हां ने एक अमेरिकन कंपनी जनरल मोटर्स उसनों सोल्ड किया फर्स्ट PLC। जो PLC दे ब्रांड का एक नाम रखा गया, तो ब्रांड का नाम सी मॉडिकॉन। जो फर्स्ट PLC दे ब्रांड का एक नाम रखा गया वो सी मॉडिकॉन, मॉड्यूलर डिजिटल कंट्रोलर। उस तो बाद जो मॉडिकॉन कंपनी है वो सोल्ड हो गई 1977 दे विच। इसनों जो खरीदा वो कंपनी का नाम सी गोल्ड इलैक्ट्रॉनिक्स। उस तो बाद फिर जो PLC है जो वो सोल्ड होया एक जर्मन कंपनी एज दे कोल। करंटली जो मॉडिकॉन ब्रांड है PLC का हुण वो फ्रांस की कंपनी है स्रेडोर्स उसके पास है। स्रेडोर्स दे जो कंपनी है उसके पास है। नाइनटीन 68 विच जदों PLC डिवाइस इन्वेंट किया गया तो उस समय पैरेलल दे विच एक होर परसन सन जो PLC डिवाइस उपर काम कर रहे सी ते रिसर्च कर रहे सी, ते वो सन ओडो जोसेफ स्ट्रगर। ओडो जोसेफ स्ट्रगर इन्हां ने 1958 ते 1960 दे विच एक ब्रांड तैयार करिया जो PLC का ब्रांड एलन ब्रैडली। ते जो एलन ब्रैडली है ते अज ये किस कंपनी को है, रॉकवेल ऑटोमेशन के पास। रॉकवेल ऑटोमेशन के पास मोस्टली अज दी जनरेशन दे विच जो 80% इंडस्ट्री दे विच यूज किया जाता वो PLC एलन ब्रैडली दे ब्रांड का किया जाता है, क्योंकि इसका इंटरफेस ईजी है। तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ तक पता चल गया होना कि PLC डिवाइस क्यों तैयार किया गया सी। भी सीक्वेंशल रिले सर्किट्स नू रिप्लेस करने वास्ते। ते जो रिले डिवाइस है अज भी बहुत सारी एप्लीकेशनस दे विच यूज किया जाता है। जे एक एग्जाम्पल लीए जिस तरह तुहाडियां बाइक्स ते कार्स विच यूज की जाती है,
ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਲੈਵਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਰਿਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਦੋ ਇਮੇਜ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਲੇ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਹਾर्डवेयर डिवाइस ਹੁੰਦਾ है। जो अपनी रिलेज है एक हार्डवेयर डिवाइस है। इस तरह की रिले जो साडे बाइक्स ते बैटरीज बॉक्स विच यूज़ की जाती है। तो होर भी कई टाइप्स की रिलेज होंदियां हन जो इंडस्ट्रीयल लैवल विच यूज़ की जांदियां ने। रिले दे जो कॉन्टैक्ट्स होंदे आ वो मिनिमम टू मिनिमम 5 कॉन्टैक्ट्स होंदे आ। 2 फेस दे, 2 फेस दे ते जो 3 कॉन्टैक्ट्स होंदे आ ये फेस नालों आइसोलेट करे जांदे आ। ठीक, जो 3 कॉन्टैक्ट्स ने इन्हां दे नाम रखे जांदे आ। एक दा नाम कॉमन ते एक कॉन्टैक्ट NO नॉर्मली ओपन, एक नॉर्मली क्लोज्ड। जो अपना रिले है वो एक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है। ओके, तो जो रिले है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच है। ये एक घट पावर सिग्नल द्वारा एक सर्किट नू ऑन ऑफ करने लई एप्लीकेशन दे विच इस्तेमाल होंदा है, जां जिथे कई सर्किट्स नू एक सिग्नल द्वारा कंट्रोल चाहिदा होवे। जो रिलेज दे विच मेन पार्ट्स हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, आर्मेचर, स्विच पॉइंट, कॉन्टैक्ट्स, स्प्रिंग। ओके, रिले इलैक्ट्रिकल ਅਤੇ इलैक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जो AC DC सप्लाई ते ऑपरेट करदा। जो एक इलैक्ट्रिक स्विच है जो कि इलैक्ट्रिक सप्लाई ते ऑपरेट करदा है। वो सप्लाई AC भी हो सकती है ਜਾਂ DC भी हो सकती है। कहने का मतलब रिले AC DC दोवां दे विच मार्केट विच उपलब्ध है। ये एक रिले दी बेसिक डायग्राम है। इस दे थ्रू देखते हैं भी रिले किस तरह वर्क करती है। रिले दे 2 सर्किट होंदे हैं, इनपुट ते आउटपुट। इनपुट ते जी आउटपुट। रिले दा काम हुंदा इनपुट सर्किट ते आउटपुट सर्किट नू आपस दे विच कनैक्ट करना आइसोलेशन दे हिसाब नाल। जो बैटरी है ते जो स्विच है वो रिले दा एक एक्सटर्नली पार्ट है। मतलब रिले दे एक एक्सटर्नली यह कनैक्ट किते हुए हैं। इस विच एक कॉइल हुंदी है। रिले दे विच एक कॉइल हुंदी है, उसदे 2 टर्मिनल्स ने। तुसीं देख सकते हो इस डायग्राम दे विच इसदे कॉइल दे नाल 2 टर्मिनल्स ने, वो बैटरी ते स्विच दे नाल कनैक्ट किते हुए हैं। ते आउटपुट दे विच एक कॉन्टैक्ट दे 3 टर्मिनल्स होंदे हैं, कॉमन, NC ते NO। NC मीन्स नॉर्मली क्लोज्ड कॉन्टैक्ट, नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट NO। जदों स्विच ऑफ हुंदी आ उस समय कॉमन अते NC जो कॉन्टैक्ट है आउटपुट साइड वो आपस दे विच क्लोज्ड हुंदे आ। मतलब जदों रिले विच करंट फ्लो नहीं हुंदा तां उस केस विच रिले दे कॉमन ते NC आपस दे विच क्लोज्ड हुंदे आ। ते जदों स्विच ऑन हुंदी है ते जदों स्विच ऑन हुंदी है तो उस समय इस दे इनपुट साइड जो वायर्स है उनके विच करंट फ्लो हुंदा।
ਤੇ ਇਸ ਕੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਗਨੇਟਾਈਜ਼ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, मैग्नेटाइज जनरेट होती है। तो जो आउटपुट साइड कॉन्टैक्ट है जो कॉमन ते एनसी दे क्लोज हुआ है उसनू अपने वल अट्रैक्ट करदा, अट्रैक्ट करन ते बाद वो एनो वल शिफ्ट हो जाता है, नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट वल शिफ्ट हो जाता है। शिफ्ट होने तो बाद जो एनो है वो एनसी का बिहेव करदा ते जो एनसी है टर्मिनल वो एनो का बिहेव करदा। इस डायग्राम विच रिले दे आउटपुट नाल मोटर कनैक्ट की हुई है ते इनपुट साइड बैटरी ते स्विच कनैक्ट की हुई है। रिले दे इनपुट साइड असी AC भी यूज कर सकते हैं ते DC भी कर सकते हैं, बट कोयल दी रेटिंग दे हिसाब नाल, कोयल दी रेटिंग दे हिसाब नाल ਜਦੋਂ स्विच क्लोज्ड करांगे तो कोयल विच करंट फ्लो होएगा, कोयल विच करंट फ्लो होएगा इस वायर के थ्रू ते कोयल है जो वो मैग्नेटाइज्ड होएगी, कोयल है जो मैग्नेटाइज्ड होएगी जिस नाल ये रिले दे आउटपुट जो कंटैक्ट है उसनू अपने वल अट्रैक्ट करेगी, कॉन्टैक्ट नू अपने वल अट्रैक्ट करेगी। तो जो कॉन्टैक्ट है वो एनो वल शिफ्ट हो जाएगा, मैग्नेटाइज होने ते इनपुट ते जो आउटपुट का कॉन्टैक्ट है उसनू अपने वल अट्रैक्ट करेगी तो जो कॉन्टैक्ट है वो एनो वल शिफ्ट हो जाएगा। तुसी पहला देख सकते हो जो आउटपुट सी रिले दे एनसी वल सी जो कॉन्टैक्ट उस समय जो सर्किट सी आउटपुट का वो ओपन सर्किट सी, एनो वल शिफ्ट होने ते ये एक क्लोज सर्किट बन गए तो AC सप्लाई के थ्रू जो मोटर है रन करना स्टार्ट कर देगी। इस तरह का प्रोसैस अपने हाउस विच डोरबैल दे विच भी यूज हुंदा है। इस तरह असी इस छोटे जिहे स्विच तो वड्डियां मोटर्स भी कंट्रोल कर सकते हैं, वड्डियां मोटर्स भी कंट्रोल कर सकते हैं। रिले के कुछ एडवांटेजेस थे डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस तो स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट पॉइंट है जो रिले है रिमोट डिवाइस नू अलाउ करता कंट्रोल करने लई, जदों डिवाइस वर्क कर रहा है जरूरी नहीं वो नेड़े होवे। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है जो रिले दे कॉन्टैक्ट्स हैं ईजिली तरीके नाल चेंज हो सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट एक्चुएटिंग पार्ट तो एक्टिवेटिंग पार्ट नू वर्क करता है। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है हाई टैंपरेचर ते भी वधिया काम करता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है जो एक घट करंट दे नाल एक्टिवेटेड हुंदा है, हालांकि हाई लैवल्स पावर्स दियां मशीन्स नू एक्टिवेट कर सकता है। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है इस दे थ्रू एक सिंगल सिग्नल नाल तुसी इक्को समय कई प्रकार के कॉन्टैक्ट्स नू भी कंट्रोल कर सकते हो। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है ये डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट नू स्विच कर सकता है, मतलब दोवें AC DC उते काम कर सकता है। अगे जो डिसएडवांटेजेस के बारे गल करते हैं। जो फर्स्ट पॉइंट है ओवर टाइम ਅਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸ यूज होने नाल जो कॉन्टैक्ट्स ने रिले दे वो डैमेज हो जाते हैं। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है जो वड्डियां लैवल्स वालियां रिलेज ने कॉन्टैक्ट्स नू एक्टिवेट अते डीएक्टिवेट करन समय बहुत ज़्यादा नॉइस करते हैं। अगला नेक्स्ट पॉइंट जदों कोई फॉल्ट आ जाता रिलेस दे विच तो उस समय जो रिले है ऑन ऑफ करन विच ज़्यादा टाइम लेगा।
ਓਕੇ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ PLC ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ, PLC ਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ, PLC ਯੂਜ਼ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ PLC ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਈਕਰੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਤੇ ਮਾਈਕਰੋ ਕੰਟਰੋਲਰ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਜੋ PLC ਦੇ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਰਿਲੇਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਰਕ, ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਤੇ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਟਾਸਕ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਜੋ ਡਿਪਲੋਮੇ ਦੇ 5th ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ PLC ਐਂਡ M ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਜੋ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਇसी PLC ਐਂਡ M ਸਬਜੈਕਟ ਤੇ ਬੇਸ ਤੇ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।